So all of you are solving the sheets, right? सब लोग कर रहे हैं ना sheet solve? सर आप क्या मुझे फिर से वो मतलब शीट भेज सकते हैं? अच्छा ठीक है, आप क्लास के बाद, क्लास के एंड में एक बार मेरे को याद दिलाना, ठीक है? ठीक है और सर। अगर वो वीडियो केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, I'll send. और अगर आपको मैसेज नहीं जाता है तो अगेन यू जस्ट रिमाइंड मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? ओके ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, कैटलिस्ट डिस्कस कर रहे थे। तो कैटलिस्ट का फंक्शन सबको क्लियर है? Why we use a catalyst? Catalyst just changes the rate of the reaction by providing an alternate path. Catalyst cannot initiate a reaction if it is not already initiated, ठीक है? Catalyst डालने से ऐसा नहीं होगा, आपका रिएक्शन जो पहले नहीं हो रहा था वो होने लगेगा. Catalyst just changes the rate of reaction, and catalyst does not affect the heat of the reaction. That is because the reactants and the products are the same. वो बस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, थोड़ा नीचे या फिर ऊपर कर देगा डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट. और हीट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है? ओके, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड. हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है? So depending on the mechanism of reaction, there are two types of reactions. There are some reactions that are called as elementary reactions. Elementary reactions. Okay. So what are elementary reactions? Elementary reactions are single step reactions. ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता है, एक ही स्टेप में हमारा क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है? दिस इज आल्सो नोन एज सिंपल रिएक्शन, ठीक है? Then second category of reaction is your complex reactions. Complex reactions. What are complex reactions? Complex reactions are the reactions that take place in multi-step. Multi-step reactions. So it takes more than one step. Okay. So this is where the mechanism of reaction becomes important, and that is how today we are going to try how we are going to derive the rate law equation. Like sometimes you must be wondering कि हमारे rate law equation में वो power में fraction कैसे आ जाता है, या फिर कभी-कभी negative power कैसे आ जाता है, because ultimately these are involving atoms and molecules. So how can a molecule that is participating that comes out to be a fraction or that comes out to be negative? Okay? So this we shall be discussing in this section. Okay, so let us start first of all with this elementary reaction. Okay. Elementary reaction. What do we mean by elementary reaction? Reaction that takes place in a single step. ठीक है, तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले तो it doesn't involve any reaction intermediates. एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व नहीं होते. नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग को थोड़ा आइडिया है व्हाट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज अ ट्रांजिशन स्टेट? ये दोनों चीज क्लियर है आपको, और शुड आई एक्सप्लेन? सर क्लियर है. क्लियर है, ओके. तो एलिमेंट्री रिएक्शन हमारा क्या होता है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसमें क्या होता है, हमारे कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स नहीं बनते, ठीक है? तो अगर इसका आप कर्व प्लॉट करें, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, so this is the potential energy
and this is the reaction path. Okay, reaction path, or sometimes it is reaction progress or reaction coordinate, sometimes different words can be used. ठीक है, basically ये हम लोग को बताता है कि हमारा reaction जैसे जैसे progress कर रहा है हमारे energy में क्या क्या changes आ रहे हैं. ठीक है, so for elementary reaction this profile is just like this. So here are the reactants, here are the products, and this is your transition state. Transition state. So it does not involve the formation of any intermediate. Okay, this is your elementary reaction. This is clear to everyone? बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just take a screenshot of this, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. और what I'll do after the class I'll send the notes to you. ठीक है, तो आप लोग बस यहाँ पे अच्छे से समझो. अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करना है तो दैट यू कैन नोट, और क्लास के बाद समवन कैन रिमाइंड मी, आई विल सेंड द पीडीएफ टू या फिर पीपीटी व्हाटएवर. ठीक है, ओके, ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, बाकी सब लोग भी बोलिए भाई. यस सर बोलने में क्या जाता है. यस सर. ओके, तो एक हम लोग का अगला टॉपिक है. वन सेकंड, लेट मी हाइड ऑल दिस. नेक्स्ट थिंग इज योर, यहाँ पे एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी. व्हाट इज दिस टर्म मॉलिक्यूलैरिटी? So molecularity is the number of molecules that makes the transition state, number of molecules that makes the transition state with sufficient energy and proper orientation. ठीक है, what is molecularity? Molecularity is the number of molecules that makes the transition state with sufficient energy and proper orientation. मतलब हम लोग जो उस दिन दो बैरियर देख रहे थे, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर, तो उसको जितने मॉलिक्यूल्स ओवरकम कर पा रहे हैं, this represents the molecularity. In other words, this just represents your stoichiometric coefficient of the reaction. Stoichiometric coefficient of the reaction. ठीक है, so this is not order. आप लोग, आप में से किसी ने डाउट पूछा था व्हाट्सएप पे कि ऑर्डर मतलब ऑर्डर हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ज्यादा या फिर कम कैसे हो सकता है. तो ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी में ये डिफरेंस है. मोलिकुलैरिटी इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑर्डर हैज नथिंग टू डू विद स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. Order can be 0, order can be equal to stoichiometric coefficient, order can be greater than stoichiometric coefficient, order can be less than stoichiometric coefficient. ठीक है, but molecularity is your stoichiometric coefficient. Okay, so depending on molecularity there are many types of reaction we can determine. Types of reaction. So earlier we classified on the basis of steps of reaction. Now we are classifying the reactions on the basis of molecularity. So on the basis of molecularity, the reaction can be unimolecular, or it can be bimolecular, or it can be trimolecular, so on and so forth. Okay, so we can give some examples. For example, for unimolecular reaction, let us say A is giving products. So here just one species is involved in this reaction. That makes it a unimolecular reaction. Only one molecule is involved. Then bimolecular reaction is A plus B gives products. Okay? This is your bimolecules. Two molecules are involved.
Trimolecular is A plus B plus C is product. So like this you can have tetramolecular and so on. Okay. So these are different types of reaction on the basis of molecularity. Is it clear to everyone? Molecularity क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. I think I will give some more examples तो इससे और clear होगा. ठीक है. Now here an important thing to understand is the difference between order and molecularity. What is the difference between order and molecularity? So first is order is an experimental term. Okay. I think Bhavya was asking what is the significance of this order. Okay. So order is something that is experimental. It cannot be determined theoretically. Okay. Based on what order we are getting, we can propose a mechanism so that we get this particular order. But everything is based on experiments, what the experimental results are, and that is going to decide what is going to be the order of the reaction. But molecularity is theoretical. Order of a reaction, it can be negative or zero or fractional. Fractional. But molecularity always has to be a positive integer. Okay. Always a positive integer. Okay. It cannot be zero, it cannot be negative, or it cannot take any fractional value. Next thing is order of a reaction. Order can be greater than equal to 3. Sorry, order can be greater than 3. That is more important. Molecularity greater than 3 is very rare. Molecularity greater than 3 is very rare. Now, why this is very rare? Because let us say because molecularity, according to the previous definition, if you go to the previous definition, what is it? It is the number of molecules that makes up the transition state. Okay. So in order to make the transition state, the reactants have to collide and they have to have a proper orientation. And if the number of molecules is greater than 3, then it is very difficult to have a proper orientation. Just like I'll show in the figure. Let us say molecularity of 2. So one molecule, another molecule, they will come, they will collide, have a proper orientation. So this is bimolecular reaction. This is something that is okay. Now let us try some trimolecular collisions. So here is one molecule, here is one molecule, here is one. When they will come closer, they will form a transition state, something here. Okay. So this is also okay. This is trimolecular reaction. But a molecularity of greater than 3. Let us say, let us take a molecularity of 4. Okay. Let me use this one. Okay. To achieve such a configuration, proper orientation in this case, this is something that is very difficult. That is why molecularity greater than 4 is generally not observed. It is something that is very rare. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. What about others? Yes, sir. Okay. This is trimolecular. Okay, so this was your difference between molecularity and order. Okay, so here are a few questions or examples, let's say. The first reaction. H2 plus I2 gives 2HI. Okay. This is a simple reaction. So, can someone tell what is the molecularity and what is the order of this reaction? Molecularity 2. Molecularity 2, order? Order will also be 2. Okay. I think in one of the previous classes, the I think first class. Okay. You remember the first class?
In that I had told that order is same as reaction coefficient for simple reactions. Okay? So for simple reaction, one step reaction, the order will be same as the molecularity. Otherwise, it is not true. Is it clear to everyone? Sir, Then can we do this? There is H2 plus I2 is equal to twice of HI. So can I do this 1 by H2 plus 1 by 2 I2 gives 1 HI. Then the molecularity will be 1. yes, molecularity will be one. But Then that is usually not done. Okay? Because molecularity has to be a positive integer. All of this coefficient should be, something that is positive. For example, let me give this another example. If you write this equation like this, 2H2 plus 2I2 gives 4HI. Okay? So here you will think that molecularity is coming out to be 4, isn't it? yes, Because sir. 2 plus 2, that is 4. No, that is not correct. Okay, this is not possible. You have to simplify the equation to the lowest possible terms. Okay? Sir, should the sum not be a fraction or individual component should not be a fraction? Individual component should be positive integers. Okay? It should not be fraction. Half H2 plus half I2. That is not. Okay? Okay. Because we are defining molecularity in that way. Okay. Then okay. Let us consider this example. Third. Sir, Yes, बोलिए. so for any elementary reaction, the order will be the sum of the stoichiometric coefficients of the reactant. Yes. For simple reactions or other elementary reactions, single step reaction, this is always true. Okay. Okay. So here is a reaction: A plus B plus C gives products. So and also the rate law is given. Rate law is K into concentration of A to the power 1, concentration of B to the power 2, concentration of C to the power 1. Okay. So what is the order of this reaction? And what is the molecularity of the reaction? Quickly tell me. Order 4, Order will be 4. molecularity 3. Molecularity. Everyone agrees on this? Yes, sir. Okay. चलो तो आप लोग को समझ में आ गया order और molecularity. Okay, तो let us move on. फिर हम लोग आते हैं complex reactions को. ठीक है? So this is the second category of reactions, that is complex reactions. So it has many characteristics. First of all, it is completed in more than one step. It is completed in more than one step. Okay. Second characteristics, it involves reaction intermediates. Unlike our elementary reaction does not involve any reaction intermediates. We are writing it short as RIs, because we will be using this term quite often. So, then for complex reaction, we have detailed step-by-step analysis. Detailed stepwise analysis. And this detailed stepwise analysis is known as reaction mechanism. How the reaction is proceeding. Stepwise analysis of this. This is reaction mechanism. And one more thing, different steps of the reaction. Different steps of reaction have different rates. Okay? So all the steps do not go at the same rate. Okay? So for each step, you will have a different rate of reaction, and the overall rate of reaction, the overall rate of reaction is dependent on
the slowest step of the reaction. Dependent on the slowest step of the reaction. Okay. And the slowest step is called as RDS. Okay. That is the rate determining step. Okay. We'll come back to this point a little later. Then another thing about reaction intermediates. Where was it? Reaction intermediates. This. What are these reaction intermediates? So reaction intermediates are the unstable entities that get formed after the beginning of reaction. After the beginning of reaction and are destroyed before the end of the reaction. Before the end of the reaction. Okay. So this is the definition of your reaction intermediates. These are unstable entities that get formed after the beginning of reaction and they get destroyed before the completion of reaction. Okay. Now let us come back to this point. What do you mean by this statement? That the slowest step is the rate determining step. This one. Okay. So let us try to imagine a factory, okay, in which a conveyor belt is there, and there are different workers. Okay, let us say there are 4 workers, and there is a conveyor belt kind of thing on which objects are moving. Okay, and let us say this is worker A, this is worker B, this is worker C, this is worker D, okay. And each of this worker takes some particular amount of time to finish his job. Let us say this worker takes 5 minutes per job. Okay. So for every what is the manufactured unit that is coming out, for every element he is taking 5 minutes to finish his job. Let us say this is the person who takes just 2 minutes to finish his job. Let us say this takes 10 minutes to finish his job. And let us say this person takes around 4 minutes to finish his job. Okay. So which of these persons is going to decide how many products are formed at the end, how many of the finished products are formed at the end of this this exercise? B. B. Why? Slowest step. Because it takes minimum time. Because it takes minimum time. तो आप देखिए जैसे पिछले वाले ने 5 मिनट लगाया, ठीक है, तो लेट अस से आप टाइम ड्यूरेशन लीजिए 10 मिनट का, तो 10 मिनट में ए ने कितना कर दिया? ए ने अभी तक 2 आइटम फिनिश कर दिए, ठीक है। बी ने अभी तक 5 आइटम फिनिश कर दिए होंगे, लेकिन बी तक अभी पहुंचा कितना? 2 आइटम ही पहुंचेगा ना, क्योंकि ए ने 2 आइटम ही फिनिश करके आगे भेजा है। बात समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो ए ने लेट अस से 10 मिनट का ड्यूरेशन है, तो उसमें ए ने कितना किया? ए ने आपको 2 आइटम्स फिनिश किए, ठीक है। तो बी तक सिर्फ 2 आइटम्स ही पहुंचे, और भले ये 4 मिनट काम किया, बाकी 6 मिनट खाली है, लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन मोर देन दिस। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, now try to understand the same thing, try to compare the same thing between A and C, ठीक है। So in 10 minutes this person has finished 2 products and this person has just finished 1 product, तो इसके आगे जो जाएगा वो एक ही प्रोडक्ट जाएगा। समझ में आ रहा है? C के आगे बस एक ही प्रोडक्ट जाएगा 10 मिनट के अंदर। Is it clear to everyone? Sir. Yes, sir. So this is the reason why the person who is taking the most amount of time, he is the rate determining person. The overall how many products will be formed, this depends on this person, this lazy fellow. Everyone is able to understand this? Yes, sir. Okay.
So something similar happens in case of reaction. I'll just show. ये एक बार ये स्लाइड अच्छे से देख लो, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो. सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी 10 मिनट्स ले रहा है तो दूसरा 1 मिनट करे तो वो उस आदमी का काम को न्यूट्रल कर दे, मतलब टाइम टेकन को, और वो 1 मिनट में ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म हो तो उसका काम को रेट डिटरमाइनिंग नहीं बोलेंगे? नहीं, उसके काम को रेट डिटरमाइनिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक वर्कर का एक पार्टिकुलर स्किल है, ठीक है, और उसके काम को बस वही कर सकता है. ऐसा नहीं कि इसने अगर 10 काम कर दिया और इसने एक ही किया, लेकिन इसके एक काम को मतलब बस वही कर सकता है, ठीक है, और जब तक उसका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता वो प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाउ इट रिलेट्स टू योर रिएक्शन में एक स्टेप में जितना टाइम लगेगा उसमें जो प्रोडक्ट है, बिकॉज उस प्रोडक्ट को क्या अगले स्टेप में एज रॉ मटेरियल जाने वाला है वो. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब तक ये स्टेप अपना काम करता नहीं है तब तक अगला स्टेप में कुछ पहुंचेगा नहीं, ठीक है. सो दैट इज व्हाई द स्टेप दैट इज टेकिंग द मोस्ट ऑफ टाइम, दैट इज गोइंग टू बी आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है. यस सर. Anyone has any doubt? Someone was asking something. No doubts? आगे बढ़े? हाँ सर. Okay. अब हम लोग एक ग्राफ से इसी चीज को समझते हैं, ठीक है. लेटस से हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें A से C बन रहा है. दिस इज द स्टेप 1, ठीक है. दिस इज स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन. वन सेकंड. This is the step 1 of the reaction. Step 1 में A से आपका C बन रहा है, ठीक है. Then there is step 2. Step 2 में आपका क्या है? C से D बन रहा है. सिंपल ही हम लोग केस ले रहे हैं. Step 3. Step 3 में आपका D से B बन रहा है, ठीक है. Overall reaction is A से B बन रहा है, ठीक है. लेकिन but it involves 3 steps और उसमें this is your RDS. ये स्टेप आपका क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है. ओके. तो अब कोई स्टेप हमारा स्लो और कोई स्टेप फास्ट होता क्यों है, ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. ये चीज याद है? K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT पढ़ा था हम लोगों ने. इज दिस क्लियर? ये सबको याद है ना? Yes. सो इसका भी हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे. दिस इज एनर्जी, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर रिएक्शन पाथ जो भी है, ठीक है. और हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? A से, ठीक है. हमारे पास अभी बस रिएक्टेंट है A, ठीक है. और ये स्टेप हमारा RDS है. RDS है मतलब क्या? ये स्टेप हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. और कोई भी स्टेप स्लोएस्ट क्यों होगा? क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो इसका ट्रांजिशन स्टेट आया, ये बना हमारा C, ठीक है. फिर ये इसका ट्रांजिशन स्टेट एक और आया, ये बना हमारा D, ठीक है. फिर इसका एक और ट्रांजिशन स्टेट आया, फाइनली हमारा प्रोडक्ट बना B, ठीक है. तो दिस इज द C and D, these are the reaction intermediates, ठीक है. These are the RIs, ठीक है. And these peaks are the transition states, ठीक है. So this is, let us say, transition state 1, this is transition state 2, and this is transition state 3, ठीक है. So now you can understand for each step what is the activation energy. पहले स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट पहुंचाने में जो एनर्जी लगती है, ठीक है. दिस एनर्जी, दिस इज द, let us say this is A, this is B, and this is your C, ठीक है. तो because A
step 1 is the rate determining step. That is why we can conclude that A is greater than B and C, because step 1 is RDS. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Similarly, हर एक स्टेप का क्या होगा? देखो, हर एक स्टेप का क्या है, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है. Let us say this is, इसका एक्टिवेशन एनर्जी है EA1, इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA2, इसका एक्टिवेशन एनर्जी है EA3. So from this diagram we can get EA1 is equal to A, ठीक है, semicolon, EA2 is equal to B and EA3 is equal to C. ठीक है, बोलो गाल को. Yes, sir. Similarly, हर एक स्टेप का क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट ऑफ रिएक्शन होगा. Let us say this is delta H1, this is delta H2, this is delta H3. Now all of you tell me, delta H1 की वैल्यू क्या होगी, delta H2 की वैल्यू क्या होगी, और delta H3 की वैल्यू क्या होगी in terms of A, B and C. ठीक है, quickly tell me. या फिर कुछ और वेरिएबल चाहिए? आई थिंक एक और वेरिएबल चाहिए. रुको एक मिनट. Let us say this value is your D, this value is your E and this value is your F. ठीक है, अब A, B, C, D, E, F इन सब का यूज करके आप इन तीनों की वैल्यू बताओ. डेल्टा H की, डेल्टा H1 क्या होगा? Who will tell? बोलो बोलो, कोई बोलो. Sir, D. 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 B. Sir, Delhi. D. D for Delhi. Okay, correct. डेल्टा H2? Sir, E. नहीं, E नहीं होगा. अच्छा, E minus D minus E. D minus E, हाँ, that is correct. तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आने में जो हो रहा है, ठीक है, इस इंटरमीडिएट से C से D तक पहुंचने में, ठीक है. सो C इज द रिएक्टेंट फॉर दिस वन एंड D इज द प्रोडक्ट फॉर स्टेप 2. ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, दैट वैल्यू विल बी D minus E. ठीक है, ये जो छोटा सा है, दिस इज डेल्टा H2. ठीक है, व्हाट अबाउट डेल्टा H3? Sir, E plus F. E plus F. Okay, correct. Very good. Is this clear to everyone? All these three expressions are clear to everyone? Yes, sir. Okay, so just take a good look at this. फिर हम इसको स्लाइड चेंज करते हैं. कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. ओके, अब हमारे पास कुछ हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, पहला कंक्लूजन कि ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी of a complex reaction can't be determined. ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिटरमाइन नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वो जो कोलिजन हो रहा है. ठीक है, और बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है हमारा, this takes place in more than one step. तो इसलिए आप इसके हर एक स्टेप के लिए आप मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, स्टेप वाइज मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी डिफाइंड. स्टेप वाइज मॉलिक्यूलैरिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी इट डज नॉट मेक एनी सेंस. ठीक है, नेक्स्ट थिंग टू नोट हियर इज
ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ या फिर ऐसे ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है, ओवरऑल क्लियर। It is very smooth actually. Overall order of a reaction, order of a complex reaction, okay, that is equal to the order of the rate determining step. जो rate determining step का order है, that is going to decide the overall order of the reaction. ओके तो हम लोग अब रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके तो पहले हम लोग इजी वाले केसेस देखते हैं। केस 1 व्हेन आरडीएस इज गिवन, ठीक है, जब आपके रिएक्शन का आरडीएस गिवन हो उस समय हम लोग कैसे रेट लॉ डिराइव करते हैं, ठीक है। इसमें भी अब दो केसेस आएंगे, ठीक है। इसमें केस हमारा हो गया केस ए 1A कह लो, ठीक है। केस 1A ये क्या है हमारा, जब आरडीएस इन्वॉल्व्स ओनली रिएक्टेंट्स, आरडीएस में हमारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो ये बहुत सिंपल केस है। लेट अस से आपका रिएक्शन हो रहा है 2A plus 3B gives A2B3, ठीक है। एंड लेट अस से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और ये क्या हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा है। ये रिएक्शन आपका क्या हो रहा है, ओके ये रिएक्शन आपका 3 स्टेप में हो रहा है एंड दिस इज द मैकेनिज्म दैट इज गिवन। मैकेनिज्म इस रिएक्शन के क्या है, स्टेप 1 A plus B forms AB, ठीक है, and the rate constant is given as K1, okay. Second step is AB plus B, the rate constant is K2, it is forming AB2, okay. Third step is AB2 plus A plus B, it is going to form your A2B3, ठीक है। हाइपोथेटिकल केस ले लिया हम लोगों ने। तो हर एक स्टेप की हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलिकुलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं। बताओ इस स्टेप की मोलिकुलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। इसकी बोलो बोलो वाल्को, 2, ठीक है। सिंपल है, इसमें तो जवाब दे सकते हैं ना सब लोग, ठीक है। इसमें 3 हो जाएगा। तो ये आपके, हाँ बोलिए सर। आपने आरडीएस इन्वॉल्व्स ओनली रिएक्टेंट्स क्यों लिखा, एक बार बताइए। हाँ वो हम अभी केस डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके तो ये रिएक्शन का लेट अस से स्टेप 1 इज आरडीएस, स्टेप 1 इज आरडीएस, ठीक है। तो ये वो वाला केस हो गया कि आरडीएस में जो हमारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है ए और बी, दे आर द पार्ट ऑफ दिस रिएक्टेंट्स ओनली, ठीक है। केस क्लियर है सबको, हेलो ये केस क्लियर है सबको। हमने क्या बोला, स्टेप 1 इज द आरडीएस और आरडीएस में आरडीएस इज योर दिस स्टेप, ठीक है। और इसमें जो भी आपके मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है वो कौन कौन है, ए और बी, ठीक है। एंड कोइंसिडेंटली बोथ ऑफ देम आर रिएक्टेंट्स ऑफ द मेन रिएक्शन आल्सो। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इसके लिए रेट लॉ हम लोग बड़े आराम से लिख देंगे। रेट लॉ इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हमारे एलिमेंट्री होंगे, सॉरी सारे जो कॉम्प्लेक्स स्टेप में एक एक स्टेप इन्वॉल्व है, ऑल ऑफ दिस स्टेप्स आर इंडिविजुअली एलिमेंट्री और सिंपल और सिंगल स्टेप लाइक दिस, ठीक है। तो इसके लिए रेट लॉ हम लोग लिख सकते हैं के इंटू K1 बिकॉज दिस इज द K1 into concentration of A into concentration of B,
Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. And this makes the order of this reaction to be 2. ठीक है? Okay. Now let us take the same reaction. ठीक है? और इसमें let us say second step is the RDS. So that will be our case 1B. So I'm moving to the new slide. Let us say this is case 1B. Okay. When RDS involves reaction intermediates. इसको मोबाइल पर RDS involves reaction intermediate. ठीक है? Let's say पिछला ही वाला reaction लेते हैं हम लोग. 2A plus 3B gives A2B3. ठीक है? And let us say the mechanism is given. Same mechanism. ठीक है? First step is A plus B K1 gives AB. Second step is AB plus B gives AB2. Third step AB2 plus A plus B. AB2 plus A plus B. This is giving A2 B3. Okay. Let us say that's in this step. In this question, let us take step 2 is the RDS. Step 2 is RDS. Okay. तो इस केस में आपका रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगा? R is equal to K2 into concentration of AB into concentration of B. ठीक है? तो दिस इज अवर केस 1B. जब RDS में क्या है, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है. AB इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट. ठीक है? दैट इज जस्ट गेटिंग फॉर्म्ड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ये क्या होगा, खत्म हो गया. ठीक है? AB2 इज आल्सो अनदर रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो अगर RDS में रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. ठीक है? तो लेट अस से यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं. ठीक है? एजम्पशन क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम RDS all steps are रिवर्सिबल. ठीक है? RDS को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेप्स हमारे क्या है, रिवर्सिबल है. ठीक है? तो दिस मेक्स इक्वेशन 1 आल्सो रिवर्सिबल एंड इक्वेशन 3 आल्सो रिवर्सिबल. ठीक है? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसके कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं बेस्ड ऑन आवर स्टेप 1. तो स्टेप 1 में हमारा क्या होता था, स्टेप 1 में हम लोग लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू concentration of AB upon concentration of A into concentration of B. Is it clear? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. और फिर यहाँ से हमारा इक्वेशन आएगा concentration of AB is equal to K1 into concentration of A into concentration of B. ठीक है? And this equation you are going to put in this. ठीक है? Put. Sir. हाँ, yes. सर आपने जो K1 लिखा है वो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? हाँ, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है? वी विल अज्यूम ऑल अदर स्टेप्स टू बी रिवर्सिबल, नहीं तो फिर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते आप. ठीक है? तो अब AB की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में. तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा K2 into concentration of AB. concentration of AB क्या है? K1 into concentration of A into concentration of B into concentration of B. So this will make concentration of B square.
तो ये आपका क्या हो गया, रेट लॉ हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमारा फंडा क्या रहा है इसका, हम लोग जब भी हमारे पास आरडीएस में रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो आवर ओनली अटेम्प्ट इज somehow or the other we have to express the concentration of this reaction intermediate in terms of the reactants, which are in this case A and B. Is it clear to everyone? Yes, sir. सबको क्लियर है पक्का? Yes, sir. Yes. So the order of this reaction will be 3 and overall K effective will be K1 into K2, ठीक है। Okay, so okay, let us move on. हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। This is your first question. 2O3 gives 3O2, ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। मैकेनिज्म इज O3 step 1, O3 is in equilibrium with O2 plus nascent oxygen और इसकी रिएक्शन है K1 K2, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन K1, बैकवर्ड रिएक्शन K2। सेकेंड स्टेप, ऑक्सीजन प्लस O3 gives you 2O2, ठीक है, and this reaction constant is K3 and this step is the RDS, ठीक है। So now you have to calculate K effective, rate law and order of the reaction, ठीक है। जल्दी ट्राई करिए इसको। सॉरी just quickly give it a try.
सर बोलिए। सर जो रेट लॉ इक्वेशन वो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट हो सकता है क्या? प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों होगा उसमें। सर तो ये आंसर है K1 K3 into concentration of O3 square into O2 concentration of O2। नहीं, थोड़ा सा गलत है, फिर से चेक करिए उसको। सर क्या K3 K1 K2 concentration of O3 square by O2? O3 स्क्वायर बाई O2 ठीक है, लेकिन रेट कांस्टेंट आपका गलत है। अगला डिस्कशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा, ठीक है। पिछले बार मेरे को 1 घंटा लगा था बस ये समझाने में, तो लास्ट टाइम हम ये पढ़ा रहे थे। ओके, सर इसको हाँ बोलिए। सर K3 into K1 O3 square by O2। O3 K2 नहीं आएगा? नहीं K2 तो आएगा, इस ये स्टेप में K2 तो इन्वॉल्व है और K2 आएगा एक्सप्रेशन में। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। तो दिस इज द RDS। तो RDS रेट लॉ हम लोग अल्टीमेटली लिख सकते हैं, दैट इज K3 into concentration of O3 into concentration of O, ठीक है। और somehow we have to replace this concentration of O। तो उसके लिए हम लोग को फर्स्ट स्टेप का लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर स्टेप 1, स्टेप 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं K1 upon K2 is equal to concentration of O2 into concentration of O upon concentration of O3, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया concentration of O is equal to K1 by K2 into concentration of O3 upon concentration of O2, ठीक है। और फिर इसको आप क्या करेंगे, ऊपर वाले में पुट कर देंगे, तो रेट आपका आ जाएगा K3 into K1 upon K2 into concentration of O3 का whole square upon concentration of O2। Is it clear to everyone? यस सर। Yes sir. ओके, क्या गलती कर रहे थे आप लोग? सर मैंने K1 by K2 नहीं किया। K1 by K2 नहीं, और सर मैंने वो K1 K2 ले लिया। K2 ले लिया। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये डिस्कशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो आप लोग एकदम अच्छे से जितना अटेंशन बना सकते हैं उतना देखिए। हमको पता है मेरे को दोबारा बताना पड़ेगा, बट स्टिल आप अपने तरफ से कोशिश करिए, ठीक है। दिस इज केस 2 व्हेन RDS इज नॉट गिवन। तो आपका रिएक्शन में क्या हुआ, RDS अब आपको दिया नहीं है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम लोग, इस केस में हम लोग प्रोसीड कैसे करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज लगाते हैं, दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट the concentration of reaction intermediates with respect to time is equal to 0, ठीक है। जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट के चेंज का जो रेट है दैट बिकम्स कांस्टेंट एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। मतलब रिएक्शन अब आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है उनका फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब जितना फॉर्म हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल है हमारा, सेम एग्जांपल है, 2 moles of oxygen is going to give you 2 moles of ozone is going to give you 3 moles of oxygen, ठीक है। और इसका लेटेस्ट से आपको मैकेनिज्म भी दे दिया। मैकेनिज्म है स्टेप 1, O3 gives O2 plus nascent oxygen, okay, this is K1. Step 2, O2 plus O gives you O3, this is K2. Third step, O3 plus O
gives you 2O2. This is K3. ठीक है, 3 स्टेप है आपके रिएक्शन के. ओके, तो तीनों स्टेप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रिस्पेक्टिव रेट लॉ इक्वेशंस लिख सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, R1 is equal to K1 into concentration of O3. इस स्टेप के लिए R2 is equal to K2 into concentration of O2 into concentration of O. और इस स्टेप के लिए R3 is equal to K3 into concentration of O3 into concentration of O. Till now everything is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट जो है, ठीक है, ओवरऑल रेट, ठीक है, ओवरऑल रेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट अस से इफ दैट इज R, तो वी कैन राइट R is equal to minus 1/2 dO3 by dt is equal to 1/3 dO2 by dt. ये चीज क्लियर है सबको? ओवरऑल रेट में ये बीच के स्टेप्स वगैरह कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस इस पे ध्यान दीजिए. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो पहले दिन हम लोग रेट पढ़े थे, तो ओवरऑल रेट इज -12 into dO3 by dt, that is this thing, and is equal to 1/3 of dO2 by dt. Everyone is there with me? Yes. Yes. ओके, अब थोड़ा सिचुएशन ट्रिकी होने वाला है. ठीक है, तो इस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो एक हमारा रिएक्टेंट हो गया O3, एक प्रोडक्ट है O2 और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है O. ठीक है, तीन चीज इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में. उन सब के ओवरऑल कंजम्पशन का हम लोग रेट इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है, तो ओजोन हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है ऑन द एवरेज, बिकॉज हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो ओजोन के लिए हम लोग ऐसे इक्वेशन लिखेंगे. ओजोन के लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस ऑफ डी, थोड़ा नीचे लिखने के लिए, माइनस ऑफ डी O3 बाई dt. ठीक है, अब हम लोग को देखना है O3 इस रिएक्शन के किस किस स्टेप में इन्वॉल्व है. ठीक है, तो O3 हमारे, लेट मी यूज अ डिफरेंट मार्कर. तो हम क्या करते हैं, इसको O3 हम लोग रेड पेन से मार्क करते हैं. ठीक है, डी O3 बाई dt इज इक्वल टू, ठीक है, तो O3 हमारे किस किस स्टेप में इन्वॉल्व है, तो स्टेप 1 में इन्वॉल्व है. स्टेप 1 में कैसे इन्वॉल्व है, एज अ रिएक्टेंट. ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज K1 into concentration of O3. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, O3 कंज्यूम हो रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, प्लस sir. सेकेंड स्टेप में हमारा O3 क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है. तो हेयर वी कैन राइट, because we have taken minus of dO3 by dt, so here we have to write minus of K2 into concentration of O2 into concentration of O. Is this clear to everyone? बोलो. तो वो साइन एक बार बता सकते हैं कैसे साइन, अपने? हाँ, तो ओवरऑल हमारे रिएक्शन में ये हमने माइनस लिया है. ठीक है, और इसका जो आप R2 को लिखो, रुको मेरे को, हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, फिर हम इसको मिटा देंगे, तो इसको ध्यान से देखो. तो R2 को हम लोग लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dO2 by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dO by dt इज इक्वल टू dO3 by dt. ऐसे लिख सकते हैं. Yes, sir. तो अगर आपने माइनस ऑफ डी, आपको यहाँ पे माइनस ऑफ dO3 by dt लेना है. ठीक है, तो दैट विल इक्वल टू माइनस ऑफ R2. अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो इसलिए हमने माइनस लिया, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं. ठीक है, स्पेस चाहिए मेरे को. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग दिस एज माइनस. फिर अगले स्टेप पे आते हैं. यहाँ पे हमारा O3 क्या हो रहा है, एज रिएक्टेंट है, तो माइनस, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, प्लस K3 into concentration of O3 into concentration of O. Is it clear to everyone? Yes, Yes. sir. Okay. तो अब आप लोग में से कोई बताइए, कौन बताएगा, बताओ आप में से कौन बताएगा इसका एक्सप्रेशन. ओके, अविंशु आप बता सकते हैं, what will be the expression of minus dO2 by dt? ठीक है, O2 हम फिर से करके बताते हैं, O के लिए आप लोग में से कोई बताइएगा. ठीक है, तो मैं बताऊं,
हाँ, who will tell? वैष्णवी वैष्णवी, हाँ बताइए वैष्णवी। सर -K1O3 -K1O3 प्लस K2O2O प्लस K2O2O -1/2 माइनस, नो नॉट 1/2, -2. -2, ठीक है। -2 times of K3O2O3O। हाँ करेक्ट, ठीक है। सबको समझ में आया ये चीज? हाँ सर। ओके, तो फिर ओइशी आप बताइए, माइनस ऑफ डी ओ बाई डी टी। अब डी के लिए हम माइनस और प्लस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ऑक्सीजन के लिए भी हमने माइनस लिया है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या है, ओवरऑल हम लोग को प्लस की वैल्यू निकालनी है, प्लस डी ओ बाई डी टी। तो इसको प्लस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है हम लोग प्लस क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ओवरऑल अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, हम लोग को ओवरऑल रेट लॉ निकालना है ना। तो प्लस डी ओ बाई डी टी या फिर माइनस ऑफ डी ओ थ्री बाई डी टी ऐसे निकालना है, ठीक है। और नेसेंट ऑक्सीजन क्या है हमारा, इंटरमीडिएट है, तो इसके लिए हम लोग प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ओइशी आप बताइए इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस डी ओ बाई डी टी सर -K1O3 माइनस K1O3, करेक्ट, प्लस प्लस K2O2O K2O2O and -K3 माइनस O3 K3 और माइनस और प्लस, no plus प्लस K3O3O। K3 into O3 into ओके करेक्ट। तो ये तीनों एक्सप्रेशन हमने क्या किया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या लगाना है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो डी आर आई बाई डी टी है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इंटरमीडिएट हमारा क्या है यहाँ पे, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके रेट को अपने को क्या करना है, 0 करना है। मतलब दिस थिंग, ये जो पूरा अपना इक्वेशन 3 है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उससे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ शुड बी, इसकी वैल्यू अगर आप निकालो, K1 into concentration of O3 upon K2 into concentration of O2 plus K3 into concentration of O3. Is this clear to everyone? समझ में आ रहा है? इसको हमने 0 से इक्वेट किया और concentration of O यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन आ गया। दिख रहा है सबको? हाँ सर। ओके, अब अगला स्टेप जो है वो थोड़ा आप लोग को भयानक लगेगा, ठीक है। We have to put this value of rate of oxygen in any of these, 1 या फिर 2, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। Put concentration of O in 1, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ डी O3 बाई डी टी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, -1/2 इंटू इसकी जो वैल्यू है एक्सप्रेशन फॉर्म में, जो ये हमारा पूरा रेड कलर से लिखा है, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करना है और O की वैल्यू को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है बाई दिस वैल्यू जो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो सब लोग इसको करो और फाइनली मेरे को आंसर बताओ रेट का क्या आ रहा है। थोड़ा लेंदी होगा बट स्टिल आप लोग ट्राई करिए। समझ में आया हमने क्या बोला, क्या करना है? हेलो, किसी को इसमें डाउट है कि करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हमने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O की जो वैल्यू यहाँ पे आई है, ठीक है, दिस थिंग, इसको आपको क्या करना है, इसमें इक्वेशन 1 में पुट करना है और इक्वेशन 1 का जो हाफ होगा दैट विल बी योर रेट ऑफ रिएक्शन, और उसी को आपको इवैल्यूएट करना है, ये रेट ऑफ रिएक्शन आपके किसके इक्वल होगा फाइनली, ठीक है। O3 और O2 के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकालना है, निकालिए इसको। थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि पक्का हमको लग रहा है आप लोग गड़बड़ करेंगे।
किसी का आया कुछ आंसर? जल्दी करिए। सर बोलिए। क्या K1O3 होल स्क्वायर क्या बाय न्यूमरेटर क्या बोला आपने? K1O3 स्क्वायर 2K1O3 स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, बाई 2K2O2 प्लस O3 2K2O2 प्लस K1O3। K1O3। हाँ सर, वो 2 होल पे है, मतलब होल 2 है। अच्छा, लेकिन आपके में तो K3 आया नहीं, K3 नहीं आएगा क्या? ओह सॉरी हम्म, सर गलती हुई। हाँ फिर से करो अच्छे से। Sir, minus of K1 K3 O3 whole square by K2 O2 plus 2 K3 O3. Oh, नहीं, sorry, K2 O2 plus K3 O3. न्यूमरेटर क्या बोला आपने? K2 O2 plus K3 O3. नहीं, न्यूमरेटर में एक ही टर्म आएगा। अब कैलकुलेशन में कहीं आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सर न्यूमरेटर में एक ही टर्म आएगा? हाँ, एक ही टर्म आएगा।
Sir, बोलिए. 2K1 K3 concentration of O3 whole square by K2 concentration of O2 plus K3 concentration of O3. वेरी गुड. किसने बोला आंसर? Sir, Bhavya. भाव्या. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा. आई विल राइट द आंसर. 2K1 K3 into concentration of O3 square upon concentration of K2 into concentration of O2 plus K3 into concentration of O3. ठीक है, तो पीसफुली ट्राई करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा, concentration of O की आ जाएगा. ठीक है, ओके आगे बढ़े. सर वो ऊपर का 2 और नीचे का 2 नहीं कटेगा? ऊपर का 2 और नीचे का 2 नहीं हाफ होगा, कटेगा. कट जाएगा. हाफ होगा कट जाएगा. 1 सेकेंड. हाँ हाफ होगा कट जाएगा. करेक्ट करेक्ट. हाफ ऑफ दिस है ना. हमने DO3 by dt की वैल्यू बताई है. ठीक है, सो लाइक दिस. क्लियर है सबको? अच्छा, वेरी गुड. किसका वही आया था? हेलो सर वैष्णवी. वैष्णवी. ओके वेरी गुड. चलो ठीक है, तो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ओके. ये क्वेश्चन ट्राई करिए. इसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस आपको तीनों रिएक्शन का, तीनों रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन का रेट बस डिफाइन करना है. ठीक है, ओवरऑल रेट आपको कैलकुलेट नहीं करना है. तो ये रिएक्शन है 2A gives 3B. ये 3B है. 2A gives 3B. ठीक है, और यहाँ से 3B gives 4C. This rate constant is K1. This rate constant is K2. This rate constant is K3. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें माइनस DA by dt की वैल्यू बतानी है, प्लस DB by dt की वैल्यू बतानी है. ठीक है, प्लस DC by dt की वैल्यू बतानी है. ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है. हुआ ऊपर वाला?
हेलो, इसका आंसर आया किसी का? सर क्या ये कंसंट्रेशन ऑफ बी के टर्म्स में आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी के ए और बी के टर्म्स में आएगा। ए और बी दोनों के टर्म्स में आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी करिए आप लोग। क्या हुआ? नहीं हो रहा है? ये तो सिंपल है भाई। ओके चलो कोई बात नहीं। माइनस डी ए बाई डी टी, इसको डिस्कस करें। माइनस डी ए बाई डी टी मतलब डी ए आपका क्या हो रहा है, ए कंज्यूम कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरफ से कंज्यूम हो रहा है और K2 से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, K1 K2 K3 तीनों के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस लिख देते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 2A से बन रहा है 3B और इसका रेट कांस्टेंट है K1। दूसरा इक्वेशन है 3B से बन रहा है 2A, इसका रेट कांस्टेंट है K2। तीसरा इक्वेशन है 3B से बन रहा है 4C, इसका रेट कांस्टेंट क्या है, K3, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए आप रेट लॉ लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए रेट लॉ लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का होल क्यूब। इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं R3 इक्वल टू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का होल क्यूब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ बोलिए। सर यह K1 A concentration of A square minus K2 B cube क्यों नहीं होगा? क्या 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 बोला आपने? K1 concentration फिर K1 multiplied by concentration of A whole square minus K2 concentration of B whole cube क्यों नहीं हाँ होगा? हाँ, वो यहाँ पे आएगा वो चीज, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये फैक्टर भी अकाउंट करना है ना 2 का, ठीक है। तो इसको आप फिर लिख सकते हैं, ये जो R1 है आपका, दिस R1 इज नथिंग बट माइनस ऑफ हाफ ऑफ डी ए बाई डी टी
और इज इक्वल टू 1/3 into dv by dt, ठीक है. Similarly, this R2 is equal to minus 1/3 dv by dt is equal to half of dA by dt, ठीक है. And similarly, this R3 is equal to R3 की वैल्यू क्या है? R3 is equal to minus 1/3 dv by dt plus is equal to 1/4 dc by dt. Is this thing clear to everyone? बोलो वाल को. Yes. Yes. ओके. तो फिर आप देखो dA by dt इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है. तो dA by dt आपके 1 में आ रहा है, dA by dt आपके 2 में आ रहा है और dA by dt थर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है. तो 1 और 2 के टर्म्स में लिखेंगे. यहाँ से dA by dt इक्वल टू क्या होगा? 2 into R1 माइनस ऑफ dA by dt इक्वल टू 2 into R1, दैट इज 2 into K1 into concentration of A का स्क्वायर, ठीक है. फिर dA by dt कहाँ आ रहा है? इक्वेशन 2 में आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, हम लोग को नेगेटिव चाहिए, ठीक है. तो दिस विल बी माइनस ऑफ 2R2, तो माइनस ऑफ 2 into R2 की वैल्यू K2 into concentration of B का होल क्यूब. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए वाल को. ये जी समझ में आया? एक मिनट, मेरे को लग रहा है नहीं समझ में आया, ठीक है. हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं. dA by dt को आपको देखना है इन तीनों एक्सप्रेशंस में कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ठीक है. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आ रहा है ये यहाँ पे dA by dt, सेकंड एक्सप्रेशन में आ रहा है यहाँ पे dA by dt, थर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ से आप देखो dA by dt क्या होगा? माइनस ऑफ 2 into R1 और R1 क्या है? K1 into A स्क्वायर. तो माइनस ऑफ 2 into K1 into A स्क्वायर, ठीक है. माइनस हमने अकाउंट में नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है. सेकेंड इक्वेशन में हमारा dA by dt इस तरफ है, ठीक है. तो 2 into R2, तो माइनस ऑफ dA by dt इज इक्वल टू माइनस 2 into R2, तो माइनस 2 into R2 की वैल्यू K2 into BQ. अब समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके. तो फिर ओके रिया आप बताइए dV by dt की वैल्यू क्या होगी? सर मैं क्या अभी लीव कर सकती हूँ? कौन बोल रहे हैं ये? वैष्णव. वैष्णवी. अच्छा ठीक है. हाँ हमारा क्लास अभी खत्म ही होने वाला है 5 मिनट में, ठीक है. सर मेरा ट्यूशन शुरू हो जाएगा. ओके चलो ठीक है. ओके. हाँ क्या बोल रहे थे हम? हाँ रिया आप बताइए dV by dt की वैल्यू. माइनस माइनस 3k1 a स्क्वायर. माइनस 3k1 क्यों होगा? 3b है. 3b है तो यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं ना अपन, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 3 इंटू होगा ना, माइनस नहीं होगा, ठीक है. 3 into K1 into A square, then what will be the next term? um, 3 of k2 b cube. 3 K2 into B cube प्लस में या फिर माइनस में? माइनस में, ठीक है. तो माइनस 3 into K2 into B cube, ठीक है. एंड थर्ड थिंग R3 का भी रोल होगा उसमें. माइनस 3r3 b cube. माइनस 3 R3 की वैल्यू कितनी है? K3 B cube. ओके तो ये आपका क्या हो गया? dB by dt. सिमिलरली dC by dt की वैल्यू कौन बताएगा? अमीशा आप बताइए dC by dt की वैल्यू. So 4r3 हाँ 4 into b R3. cube. R3 की वैल्यू, R3 की वैल्यू ये है ना K3 into B cube है. हाँ सर K3 b cube. हाँ ओके ओके तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है. वेरी गुड. तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है. इसको नोट कर लीजिए. 2A इक्विलिब्रियम विद K1 K2 K1 K2 K3 K4. सर ये सारे हम इक्वेट कर रहे हैं या फिर मतलब ऐड कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा वो. कहाँ पे? सर जैसे हम dA by dt हर केस से मतलब इक्वेट कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं, मतलब एज इट इज वैल्यू हम लिख दे रहे हैं ना. एज मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपका डाउट.
सर जैसे माइनस डी ए बाई डी टी हमने तीनों स्टेप्स में से निकाल कर इक्वेट किया है या फिर तीनों में से जो उसका वैल्यू उसे ऐड किया है? ऐड किया है ना। तो सर क्यों ऐड किया है? ऐड इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो ए होगा, ठीक है, तो लेटेस्ट से कुछ पोर्शन ए का हमारा R1 रेट से कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, कुछ पोर्शन हमारे ए का क्या होगा किसी दूसरे मेथड से बन रहा है, ठीक है, स्टेप 2 में जैसे ए बन रहा है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर मतलब आप एक तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ आपका कुछ पोर्शन है जो इधर से आ रहा है और कुछ पोर्शन जो है इधर से कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल रेट हम लोग क्या करेंगे, ये एडिटिव होगा ना, मतलब इधर से इतना आ रहा है हाँ और इधर सर। से इतना जा रहा है, ठीक है। अच्छा तो सर। हाँ उसी को हम लोग इस तरह से करें, ठीक है। सर हाँ बोलिए। डीसी बाई डीटी में एक माइनस होगा ना? डीसी बाई डीटी में माइनस होगा क्या? नहीं -4k3। नहीं नहीं, ये प्लस है ना, यहाँ पे ये चीज भी प्लस है ना, 4 हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा है ना, इट इज गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, हम स्लाइड तो भेजेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का जो शीट है, ठीक है, तो इस चैप्टर में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एक क्लास लगेगा थ्योरी कंप्लीट होने में, तो आप लोग शीट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगले सर मुझे वो थोड़ा भेज दीजिए। हाँ हम भेज देते हैं, ठीक है। तो टुडे इज 24 जुलाई, अगले फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, एक वीक का टाइम है, आप तब तक ये कंप्लीट कर लीजिए चैप्टर। नेक्स्ट फ्राइडे वी विल बी डिस्कसिंग डाउट्स, ठीक है। तो एटलीस्ट इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1 और 2 सबका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। अगर इसके आगे टाइम मिलता है तो फिर कर सकते हैं, 1 और 2 तो डेफिनेटली सबका हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, बोलो बाल को, यस सर कर लेंगे। यस सर। ओके सर। बस 2 लोगों ने बोला, ओके बाकी सर। लोग? अच्छा, अमीशा, ओके चलो ठीक है। सर बोलिए। सर आप केमिकल काइनेटिक्स के अब तक के जितने वीडियोस है एक बार भेज सकते हैं? ठीक है, हम ग्रुप पे डाल देंगे। ओके ओके सर। सर हाँ बोलिए। sir, in the previous question, what do we have to calculate? In the previous question you had to calculate the values of this dA by dt, dV by dt, dC by dt, Okay, dd by dt, ठीक है। Okay, चलो ठीक है। Anyone has any doubt? Any other thing wants to Sir. calculate? हाँ बोलिए। Sir, can you discuss the homework that you gave the previous day, those graphs? अच्छा, क्या होमवर्क था, मेरे को याद ही नहीं, बताओ क्या होमवर्क क्या था। Sir, we had to plot the graphs from ओके the ओके, Arrhenius यस 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 equation. यस, आई रिमेम्बर। ओके, ग्राफ्स क्या था, पहला ग्राफ क्या था, के वर्सेस टेम्परेचर, राइट, के वर्सेस टेम्परेचर। ओके, क्या होगा इसका ग्राफ, बताओ वाल को आप लोग। के इक्वल टू हमारा क्या आता है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा हमारा प्रेशर। अच्छा, ये कैसा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप देखो टेम्परेचर को जब आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये चीज Decreasing function. डिक्रीज करेगा, ठीक है। नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर आप बढ़ाओ तो ये चीज आपका ओवरऑल, एक मिनट देखने दो, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, ठीक है, तो ये टर्म क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीज करेगा, ठीक है, जिसके कारण ये टर्म माइनस के साथ क्या होगा, माइनस, चूंकि माइनस है तो ये टर्म ओवरऑल इंक्रीज करेगा, और e टू द पावर कोई नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये चीज समझ में आया सबको। तो फिर से हम यस बता रहे सर। हैं, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो हम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू जो ये ग्रीन कलर के सर्कल में हमने लिखा है, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये बड़े स्क्वायर के अंदर जो है वो माइनस ऑफ वो थिंग है, तो माइनस ऑफ कुछ बढ़ता हुआ नंबर वो ओवरऑल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, सॉरी, ओवरऑल वो घट रहा है, तो माइनस ऑफ घट रहा है मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारा बढ़ रहा है। अब e टू द पावर कोई नंबर जो बढ़ रहा है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज क्लियर है सबको।
यस सर। हाँ, Yes, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा? t इक्वल टू 0 के लिए हमारे ये चीज डिफाइन नहीं है, तो t इक्वल टू 0 पे हमारा कुछ ना कुछ मतलब कर्व डिफाइन नहीं है, ठीक है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? रेट हमारा इन्फिनिटी चला जाएगा। तो ये एक एक्सपोनेंशियली क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और 0 के आसपास ये कौन सी वैल्यू लेगा? तो ये दिस इज मोर लाइक अ मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो इसका कर्व 0 के आसपास हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन इधर से इधर के बीच हम लोग कह सकते हैं कि समथिंग लाइक दिस होगा हमारा कर्व, ठीक है। 0 पे पता नहीं, ये वैल्यू कहीं भी डॉट ले सकता है, ठीक है। आप लोग ये लिमिट निकालना है इसकी, पता नहीं 0 आता है या फिर क्या आता है, t इक्वल टू 0 के आसपास इसका क्या होगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ का नेचर हमारा ऐसा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, ये चीज समझ में आया सर सबको? t इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए ना, t e टू इक्वल द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। Yes. तो लेकिन 0 हम लोग उसको डिनोट नहीं करेंगे, डॉट देंगे उधर, ठीक है। ओके, वन सेकंड, लेट मी जस्ट इरेज दिस। ओके, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे 0 होगा, मतलब 0 को टेंड करेगा, से इंक्रीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? ln k वर्सेस 1/t था। ln k वर्सेस 1/t, सॉरी 1/t। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? सर बोलिए। सर सर मुझे अभी थोड़ा लीव करना पड़ेगा, मेरा भी ट्यूशन है तो अभी टाइम ओके हो रहा है। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो ln k और इसका हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है बताओ? ln k इक्वल टू ln a माइनस ea by rt। माइनस ea बाई rt, ठीक है। तो ये चीज हमारा y एक्सिस पे है, और ये चीज पता नहीं है, कुछ कांस्टेंट हो जाएगा k डैश माइनस ea बाई r को हम कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, k डबल डैश इंटू 1/t। 1/t हमारा क्या है? x है। तो ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग है, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है, तो हमारा ऐसे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है, ln a दैट इज ln a, करेक्ट, ठीक है। स्लोप अगर कोई पूछे तो क्या होगा? ea बाई r, ठीक है, माइनस ea बाई r, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes sir। yes sir। ओके, चलो ठीक है। और किसी को कुछ डाउट पूछना है? सर और दो ग्राफ थे। और ग्राफ थे? ओके, अरे स्लाइड खत्म हो गया, 1 मिनट रुको, बॉल को मेरे स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। फिर इसको क्लियर करते हैं, इसका इस पोर्शन को क्लियर कर देते हैं। अभी बस खत्म हो गया। हाँ, अगला ग्राफ क्या था बॉल को बताओ एक बार। log k वर्सेस 1/t। हाँ, log k वर्सेस 1/t भी इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप एक्सप्रेशन निकालो उसकी, नेचर ग्राफ का ऐसा ही आएगा, बस इंटरसेप्ट चेंज होगा, वो 2.303 का कुछ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। और क्या था? log k वर्सेस ea log k at वर्सेस, constant temperature। अच्छा, log k वर्सेस ea एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा यही है, इसी इक्वेशन को अपने को क्या करना है? यूज करना है। log k, अच्छा, इसको ln को log में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। log k इज इक्वल टू log a माइनस ea बाई 2.303 इंटू RT, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? y एक्सिस, ये कोई कांस्टेंट हो गया k, ea है हमारा, ठीक है, माइनस ea हमारा क्या हो गया? x इंटू सम अदर कांस्टेंट, ये सब जो है, ठीक है। तो इसको k डैश बोल दो। तो ये भी हमारा क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया, जिसका स्लोप क्या है? निगेटिव है। समझ में आ रहा है सबको? ये भी कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? इसका इंटरसेप्ट भी इधर, दिस इज योर log a, ठीक है।
और इसका स्लोप क्या है? tan theta is equal to 1 by 2.303 RT. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो we'll meet again on Tuesday. तब तक आप लोग असाइनमेंट में लग जाओ अभी से, ठीक है? ऐसा ट्यूसडे का वेट मत करो कि फ्राइडे का टाइम दिया तो फिर बाद में करेंगे, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।